سیریل ڈائن کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا نہال فوزیہ اور ذکیہ کی چالوں کا مقابلہ کر پائے گی؟ نہال کی ماں نہال کو سامنے دیکھ کر پہچان پائے گی؟ اپنی ماں کی حالت دیکھتے ہوئے اس کے آنسوؤں سے پگھل جائے گی یا پھر اپنے پلان کو کامیاب کرنے کے لیے خود کو کنٹرول میں رکھے گی؟ کیا نہال زوال شاہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ نہال حنین کو شباب سے چھیننے میں کامیاب ہو جائے گی؟ یہ سب کچھ ہم آپ کو آج اس ویڈیو میں بتائیں گے، تو اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کریں۔ ناظرین، آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے نہال جو کہ حنین سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے اور اس کے لیے بہت زیادہ تڑپتی ہے۔ اس کی محبت میں وہ اپنے حقیقی رشتے ماں کو بھی بھول جاتی ہے۔ اس کی ماں جو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور اس کی محبت میں کئی بار حویلی چکر لگاتی ہے۔ شاید اس کی بیٹی سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ کیا نہال کو اپنی ماں کا خیال نہیں آیا؟ اس کی ماں بھی اس کے لیے اسی طرح تڑپ رہی ہوگی جیسا کہ وہ اپنے بیٹے حنین کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اس کی ماں تو اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ ناظرین، نہال کی ماں حویلی میں آ جاتی ہے اور وہ بہت ہی اجڑی ہوئی حالت میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ نہال کو دیکھ رہی ہوتی ہے۔ کیا وہ نہال کو پہچان پائے گی کہ وہ اس کی بیٹی ہے؟ جبکہ نہال بھی اپنی ماں کو دیکھ لیتی ہے۔ اس کی ماں کھڑی ہے۔ اپنی ماں کو اس حالت میں دیکھ کر بہت زیادہ دکھی اور پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ نہال کی ماں بھی جب نہال کو دیکھتی ہے تو خود کو کنٹرول نہیں کر پاتی۔ وہ جا کر کہتی ہے، نہال تو یہاں پر ہو اور میں یہاں کے چکر لگا لگا کر تھک گئی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ ان لوگوں نے تمہیں مار دیا۔ میں یہاں پر باندھی بنا کر رکھا ہوا ہے اور تم پر ظلم کرتے ہیں۔ انہوں نے تو ہمارے گھر آ کر ہمیں دھمکی بھی دی تھی کہ میں آئندہ تم سے ملنے کی کوشش نہ کروں، لیکن میں اپنی ممتا سے مجبور ہو کر تم سے ملنے آئی ہوں۔ نہال کی ماں اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ کو تو نہال بھی خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی اور وہ اپنی ماں کے گلے لگ جاتی ہے، جبکہ دور کھڑی فوزیہ یہ سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے یہ تو شکیل انصاری کی بیوی ہے اور یہ بھی یہاں کیا کرنے آئی ہے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگتے ہیں۔ سے کھڑی ہوئی آخر کیا باتیں کر رہی ہیں۔ فوزیہ کو تو پہلے بھی نہال پر شک ہوتا ہے کہ میں نے اس کو کہیں دیکھا ہے، اور یہ شک یقین میں بدل جاتا ہے جب اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہے اور اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گی۔ دوسری طرف نہال اپنی ماں کو الگ کرتی ہوئی کہتی ہے، لیڈی آپ کون ہیں؟ آپ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ میں آپ کو نہیں جانتی۔ آنٹی آپ بتائیے آپ کو کس سے ملنا ہے؟ نہال کی ماں کہتی ہے، بیٹا تم میری بیٹی ہو، نہال ہو۔ وہ کہتی ہے، میں کسی نہال کو نہیں جانتی، میں تو نشا ہوں۔ میں یہاں پر حنین بابا کی نینی بن کر آئی ہوں، میں اس کی دیکھ بھال کرتی ہوں۔ نہال کی ماں بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے کہتی ہے، بیٹا میں تمہاری ماں ہوں، تم مجھے کیوں نہیں پہچانی؟ تم مجھ سے شاید ناراض ہو یا شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے؟ جہاں پر نہال کہتی ہے، غلط فہمی تو آپ کو ہو رہی ہے، میرا نام نہال نہیں ہے بلکہ میں میشا ہوں اور میں یہاں پر صرف حنین بابا کی دیکھ بھال کرتی ہوں، ایک ملازمہ ہوں۔ اگر آپ کو اپنی بیٹی سے ملنا ہے تو آپ اس حویلی کے مکینوں سے پوچھیں، وہ آپ کو بتائیں گے آپ کی بیٹی کے بارے میں۔ میں آپ کی بیٹی کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ نہال کی ماں کہتی ہے، تم میری نہال ہی ہو، ایک ماں کی آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی، تم مجھ سے ناراض ہو، پلیز میری بات مان جاؤ۔ وہ اپنی بیٹی کے لیے دن رات تڑپ رہی ہوتی ہے، ترس رہی ہوتی ہے، اور آج جب وہ اس کی بیٹی اسے مل جاتی ہے تو وہ اسے اس طرح اگنور کرتی ہے جیسے کہ وہ اسے جانتی ہی نہیں۔ کی ماں جب اس کا ہاتھ پکڑتی ہے تو وہ اپنی ماں کا ہاتھ بے رخی سے جھٹک کر کہتی ہے، آپ تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی، میرے گلے پڑ گئی ہو۔ میں نے بتایا نا آپ کو، میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں، آپ جائیے پلیز یہاں سے۔ یہاں پر یہ سب کچھ نہ کرتی تو شاید اس کو اس کا بیٹا حنین نہ مل پاتا، جبکہ دوسری طرف وہ زوال شاہ کو اپنی محبت کے جال میں پھنسانے کے لیے کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ زوال شاہ جو کہ چلتا ہوا آ رہا ہوتا ہے اور میشا دیکھ لیتی ہے کہ زوال شاہ آ رہا ہے، وہ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے گرنے لگتی ہے، تب بھی زوال شاہ اسے سہارا دیتا ہے اور اوپر کی طرف اٹھاتا ہے۔ زوال شاہ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہتی ہے، تھینک یو سر، آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا۔ جس پر زوال شاہ کہتا ہے، ہر بار ایسا نہیں ہوگا کہ قسمت آپ کا ساتھ دے، آپ کو اپنا خیال خود رکھنا ہوگا۔ میشا جو کہ اپنے حسن و شباب کو چار چاند لگا کر زوال شاہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، وہ تو دل سے یہی چاہتی ہے کہ زوال شاہ اس کو دل دے بیٹھے۔ میشا نہال کے حسن و شباب سے چونک جاتا ہے۔ نہال جو کہ اپنے حسن و شباب کو چار چاند لگا کر زوال شاہ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے، وہ تو دل سے یہی چاہتی ہے کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو، وہ اسے اپنے عشق کے جال میں پھنسائے اور پھر اسے بتائے کہ دھوکہ دینا کیا ہوتا ہے۔
मीशा को जैसे जैसे मौका मिलेगा वो जवार शाह के करीब होती जाएगी। आखिर एक दिन वो बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाती है। खड़ी ज़किया निहाल और जवार शाह को इस तरह से बेतकल्लुफ़ी से बातें करते हुए देखकर परेशान हो जाती है और वो काफ़ी देर तक खड़ी रहती है कि आखिर ये क्या कर रही है। निहाल दूसरी तरफ देख लेती है कि ज़किया देख रही है। वो इसके शक को और बढ़ावा देती है और जवार शाह के करीब होने की कोशिश करती है। बार बार उसके हाथों को छूती है, जहाँ से उसे यकीन हो जाता है ये ज़रूर जवार शाह को अपने हुस्न के जादू में फंसाने की कोशिश कर रही है। फौजिया के पास जाती है, उसे जाकर सब कुछ बताती है कि जवार शाह और मीशा के दरमियान कुछ चल रहा है। मैं देख कर आई हूँ, दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बेतकल्लुफ़ हैं। हमें इस बारे में शबाब को बता देना चाहिए। शबाब को जब इसके बारे में पता चलेगा तो वो इसे एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं करेगी। फौजिया ज़किया को चुप करा देती है, कहती है हमें कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तो पहले ही इस पर शक है, मुझे लगता है कि ये निहाल है। और वो आमिर से पूछती है तुम्हें यकीन तो है ना, तुम निहाल को दफना दिया था और वो मर गई थी। मुझे तो ऐसा लगता है कि निशा ही निहाल है और ये हमसे बदला लेने के लिए आई है। इसकी माँ भी आई थी और दोनों गले मिल रहे थे, जिस पर आमिर कहता है तुम्हारे दिलो दिमाग पर तो बस निहाल सवार है। आमिर कहता है जब से शबाब ने तुम्हें बेइज्जत किया है तुम इस बेचारी मीशा के पीछे पड़ गई। वो निहाल चपड़ासी की बेटी और कहाँ ये मॉडर्न पढ़ी लिखी लड़की। जिस पर ज़किया फौजिया को समझाने की कोशिश करती है हमारे पास इससे अच्छा और मौका हो ही नहीं सकता, हम इसके बारे में जाकर शबाब को बता दें। को एक बार फिर मना करती है, इस शबाब को भी पता लगे जब ये मीशा इसके शोहर जवार शाह को ले उड़ेगी तब इसकी आंखों से इसके एतबार की पट्टी उतरेगी और इसी तरह इनकी मोहब्बत भी कम होगी। मीशा को तो हम आसानी से अपने रास्ते से हटा सकते हैं। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो शबाब है और वो हमारे गल पड़ी है। वो हड्डी जो न निगली जाती है ना उगली जाती है। ऐसे कहती है इस मीशा को तो मैं खुद देख लूँगी, तुम इससे परेशान मत हो। फौजिया जो कि मीशा के सामने आ जाती है और कहती है मुझे अपने भतीजे को उठाना है, इसे प्यार करना है, इसे मुझे दे दो, तुम जाओ यहाँ से, मैं इसके साथ कुछ टाइम खेलना चाहती हूँ। कहती है मुझे मैम ने मना किया है, मैं इसको आपके हवाले नहीं कर सकती। जिस पर फौजिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। इससे कहती है तुम हुनैन की मुलाजमा हो, ये मेरा खून है। कहती है ये मेरा खून है, तुम मुझे इससे मिलने के लिए और इसके साथ खेलने के लिए रोक नहीं सकती। जिस पर मीशा कहती है मुझे शबाब मैडम ने आर्डर दिया है कि मैं इसे किसी को भी ना दूँ और मैं उनके ऑर्डर को फॉलो करूँगी, ये मेरी जिम्मेदारी है और मैं अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाना जानती हूँ। फौजिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो कहती है तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम मेरे सामने इतनी ज़बान चलाओ। फौजिया मीशा पर हाथ उठाने लगती है लेकिन मीशा फौजिया का हाथ पकड़ लेगी। इसे कहेगी तुमने ये हरकत आज तो कर ली, अगर आइंदा तुमने ये हरकत की और मुझे हाथ लगाने की कोशिश की मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूँगी। लेकिन फौजिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। मैं तुम्हें चूंटी की तरह मसल दूँगी, चूटियों के पर काटना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। मीशा कहती है तुमने जो करना है कर लो, मुझे भी चूंटियों को मसलना आता है, अब तुम्हारी है, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। फौजिया ये सब सुनकर गुस्से में मीशा को धक्का दे देती है। मीशा जो कि ज़मीन पर गिरती है और हुनैन को संभाले हुए होती है, वो हुनैन भी ज़मीन पर गिर जाता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। तभी शबाब वहाँ पर आ जाती है। मीशा को भी चोट लगती है और ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है। शबाब चीखती है ये सब क्या हुआ, किसने किया। मीशा बताती है फौजिया ने मुझे धक्का दिया और वो मुझसे बाबा को छीन रही थी। मैंने जब इसे देने से इनकार कर दिया तो इसने मुझे गिरा दिया और इसको बचाते हुए मैं नीचे गिर गई और मुझे भी चोट लग गई। फौरन ही अपना पेंतरा बदलते हुए कहती है ये तो हुनैन को संभाल ही नहीं सकती, इसे जानबूझकर गिरी है और मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। शबाब जो कि उसको जानती थी इसलिए वो चुप करके वहाँ से चली जाती है। तभी निहाल शबाब को बताती है ये मुझे रोज़ाना बहुत ज़्यादा तंग करती हैं और धमकी भी देती है कि मुझे इस घर से निकाल कर ही दम लेगी, जबकि मैं अपना काम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से निभाती हूँ। ये जब भी मैं अकेली होती हूँ और वह इसी तरह आकर हुनैन को मुझसे छीनने की कोशिश करती है, धमकियाँ देती है। शबाब मीशा से कहती है अगर आइंदा वो तुम्हारे या हुनैन के करीब भी आए तो इसे जान से मार देना, मैं हुनैन के साथ किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। मीशा को भी होता है कि कहीं ये हुनैन को नुकसान ना पहुंचा दे। वो तो शबाब से बढ़कर हुनैन से मोहब्बत करती है, जबकि शबाब यहाँ पर हुनैन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होती है और वह जवार शाह को बुलाती है और कहती है जवार शाह अपनी बहनों को समझा लो, आज तो इन्होंने हद ही कर दी, तुमने जो उनकी मोहब्बत में अपनी आंखें बंद कर रखी हैं, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अगर आज मेरे बेटे को कुछ हो जाता तो मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त ना करती।
शबाब को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शबाब तो उसकी किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। जहां पर मीशा काफ़ी हद तक शबाब को सेटिस्फाई कर देती है कि शबाब मैम हुनैन का मैं बहुत ख्याल रखती हूं और मैं उनके इसके करीब भी फटकने नहीं दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। दूसरी तरफ मीशा जवार शाह से बार बार मिलती है और उससे पूछती है कि आपकी बेगम आपको तो टाइम नहीं देती बल्कि पापा की ही देखभाल में लगी रहती है, जिस पर जवार शाह कहता है वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और मेरा बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन जब से जवार शाह हुनैन शाह हमारी ज़िंदगी में आया है उसने मुझे यकसर फरामोश कर दिया। शबाब के साथ साथ जवार शाह को उसकी बहनों से भी बदगुमान करने की कोशिश करती है कि वो आपके बेटे की दुश्मन है और मुझे तो लगता है वो हर वक्त इसी कोशिश में लगी रहती हैं कि इसे नुकसान पहुंचा सके। उसी तरफ फौजिया एक बार फिर निहाल को पकड़ लेती है और उसे कहती है तुम अपनी औकात से बाहर मत हो, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात में ला कर रहूँगी, तुम हो तो एक मुलाजमा ही ना, मुझे चूंटियों को मसलना अच्छे से आता है, मैं तुम्हारे करतूत जब शबाब को बताऊंगी तो वो तुम्हें इस घर में नहीं रखेगी। फौजिया जो एक शैतानी दिमाग की औरत है, अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ करती क्या हूँ, मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम्हारी आने वाली 7 नस्लें भी याद रखेंगी। निहाल फौजिया से कहती है मुझे तुमसे खून की बो आती है, मुझे तो लगता है तुम्हारे हाथों से किसी का खून हुआ है, इसीलिए तुम हर वक्त जान लेने की बातें करती हो। फटी फटी आंखों से निहाल को देखती है और कहती है तुम्हारा ये सब कुछ कहने का क्या मतलब है, जिस पर निहाल कहती है वक्त आने पर मैं इसका मतलब भी तुम्हें समझा दूंगी। निहाल गुस्से से फौजिया से कहती है मेरा कांटा तो पानी भी नहीं मांगता और तुम देखना जब मैं तुम्हें काटूंगी तो तुम दूसरी सांस भी नहीं ले सकोगी। फौजिया निहाल का ये रूप देखकर बहुत ज़्यादा परेशान होती है और सोचती है इसे कैसे पता चल गया कि मैंने किसी का खून किया है, क्योंकि हर वक्त इस टो में लगी रहती है कि कोई ना कोई सबूत इसके हाथ लगे और वो निहाल को यहाँ से निकाल दे। ये शबाब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और जवार शाह को कहती है मैं हुनैन को बहुत बड़े नुकसान से बचाना चाहती हूँ, मैं हरगिज़ ये बर्दाश्त नहीं करूँगी मेरी औलाद को कोई नुकसान पहुँचाए, इसीलिए मैं तुम्हें कहती हूँ अपनी बहनों को समझा लो बल्कि उन्हें इस घर से निकाल दो, जो कि जानती है कि उनके हाथ पहले ही खून से रंगे हुए हैं और वो इसके बेटे को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए वो जवार शाह के सामने तो कुछ कह नहीं पाती कि निहाल के कातिल हैं, इससे इन्हें फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन इसे ये डर है। आपको क्या लगता है क्या फौजिया और ज़किया मीशा को हवेली से निकालने में कामयाब हो जाएंगी? क्या शबाब और जवार शाह को मुतमईन कर पाएगी कि हुनैन के लिए इससे अच्छी नैनी कोई और हो ही नहीं सकती? आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।